تو ہے ناظرین، آنے والی سٹوری میں آئرہ الجھن اور پریشانی محسوس کرنے لگی ہے۔ خاور کچھ سمجھنے کو تیار نہیں۔ جب آئرہ دوبارہ اپنی والدہ سے بات کرتی ہے، وہ سمجھاتے ہوئے کہتی ہے کہ بیٹا، خاور اچھا انسان ہے، ویل سیٹلڈ ہے، نہایت شریف مہذب ہے، مجھے وہ بہت پسند ہے، اب دیکھتے ہیں تمہارے دل میں کیوں اس کے لیے جگہ نہیں ہے۔ یہ بات ناقابل محم تھی۔ والد پھر وہی جو اپنی بیٹیوں کی مرضی کا خیال رکھتے ہوئے، لیکن یہ بیٹیوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آئرہ خاور کے نام پر شادی سے انکار کیوں کر رہی ہے؟ یہ بات آپ سمجھ نہیں آ رہی تھی عرفان کو۔ آئرہ نے تو پہلے ہی دن صاف انکار کر دیا تھا، مگر اب اس کی ماں زبردستی شادی پر آمادہ کروا رہی ہے۔ اسی دن اشتیاق کامیار کو فون کر کے بتاتا ہے کہ میرے کزن نے پہلے ہی تم سے قدم اٹھا لیا، اس نے آئرہ کا رشتہ مانگ لیا، اس کا خاندان اس پر غور کر رہا ہے۔ کامیار یہ کہتا ہے یہ کیسے پاسبل ہے؟ انہوں نے میری شادی کے بارے میں سوچنے کی بھی زحمت نہیں کی اور ایک دن میں فیصلہ کر لیا۔ اشتیاق جواب دیتا ہے ان کے مزاج سے صاف لگتا ہے کہ وہ جلد ہاں کر دیں گے، اس لیے اب تم خود فیصلہ کرو تمہیں کیا کرنا ہے۔ میرا خیال ہے آئرہ بھی تمہیں پسند کرنے لگی ہے، میں نے اس باتوں سے نوٹ کیا ہے، اور وہ تم جانتے ہو خاور کے رشتے سے بالکل بھی خوش نہیں اور اس نے انکار بھی کیا ہے۔ اس کے بعد کامیار گھر جا کر اپنے والدین سے کہتا ہے کہ تیاری کرے کیونکہ اب وقت کی بات ہے، انہیں بات ماننی پڑے گی۔ یہ سن کر کامیار کے والدین سخت ناراض ہوتے ہیں۔ یہاں پر اب اس کا باپ سہیل کہتا ہے کہ آخر تم سمجھتے کیا ہو؟ اس کے والد کہتے ہیں کہ کیا تم نے فاریہ کے گھر جانا چاہتے ہو؟ کامیار جواب دیتا ہے نہیں، آئرہ کے گھر۔ والد اس کا کافی سخت ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم دوبارہ اس کے گھر نہیں جائیں گے جہاں ہمیں ذلیل کھول کر نکالا گیا تھا، ہماری کوئی عزت ہے اور معاشرے میں نام بھی۔ وہ لڑکی نہ پہلے تم سے محبت کرتی تھی اور نہ اب کرتی ہے، اس نے تمہیں اتنا ذلیل کیا کہ گھر سے نکال دیا اور سب کے سامنے تمہارے منہ پر تھپڑ مار دیا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اس خیالات سے اپنے دل کو نکال دو۔ لیکن اب کامیار یہ ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ کامیار آئرہ کے گھر پہنچتا ہے۔ عرفان صاحب غصے میں پوچھتے ہیں تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کامیار انہیں آئینہ دکھاتے ہوئے کہتا ہے جب میں نے سب کچھ کہا تھا، آپ نے مجھے ذلیل کیا، گالیاں دی اور نکال دیا، اب ایک اور لڑکا وہی سب کچھ کر رہا ہے تو آپ اپنی بیٹی کے لیے قبول کرنے کے لیے تیار ہے، چاہے وہ اپنے کردار میں کتنا ہی برا ہے۔ یاد رکھیے آئرہ میری ہے اور میں کسی اور کو اس کی زندگی میں نہیں آنے دوں گا۔ عرفان صاحب غصے سے کہتے ہیں تم کیا کرو گے؟ گاڑی جلا دو گے، دھمکیاں دو گے، پولیس سے شکایت کرو گے یا پھر گولی چلاؤ گے؟ آئرہ میری بیٹی ہے اور میں وہی فیصلہ کروں گا جو اس کے لیے بہتر ہے، تم نہیں۔ اب یہاں سے نکل جاؤ ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گا۔ کامیار چلاتا ہے۔ عرفان صاحب آئرہ سے کہتے ہیں میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تم سخاور سے شادی کرو گی، فوراً ان سے بات منگنی کی کر کے تاریخ طے کرو، اگلے ہفتے جا رہے ہیں، بہتر ہے اس سے پہلے نکاح ہو جائے، اس گنڈے سے تمہاری جان چھوٹ جائے۔ ایسا لگتا تھا جیسے عرفان صاحب اپنی بیٹی کی خوشی کی کوئی معنی نہیں رکھتے۔ جو شخص پہلے سمجھدار اور پڑھا لکھا تھا، اب کامیار کی ضد میں آئرہ کی زندگی برباد کرنے کے لیے آمادہ تھا۔ اس کے خیال میں کامیار جیسے انسان کو کبھی درست نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی وہ ہو سکتا ہے اور اپنے والد سے انکار نہیں کر پائے گی۔ وہ کوشش کرے گی مگر عرفان صاحب کہیں گے کہ اگر تم میرے لیے وقار کی قدر کرتے ہو تو خاور سے شادی کے لیے مان جاؤ۔ بلا کر آئرہ مان جائے گی۔ خاور کے لیے خوشخبری ہوگی، جلد ہی آئرہ اور خاور کی منگنی طے ہو جاتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ منگنی واقع ہو جائے گی، لیکن کامیار اس منگنی کو توڑے گا ضرور، کیونکہ وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ آئرہ کسی اور کی ہو۔ کامیار کو جیسی آئرہ اور خاور کی منگنی کی خبر ملے گی، وہ ان کے گھر جا کر منگنی ختم کرنے کی کوشش کرے گی۔ آئرہ شاید کامیار کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ وہ گھر سے چلا جائے، مگر بات یہاں ختم نہیں ہوگی۔ ممکن ہے آئرہ اور خاور کا نکاح بھی طے ہو جائے، لیکن میرا احساس ہے کہ جیسے نکاح کی بات آئے گی تو کامیار سب کے سامنے آ کر یہ اعلان کرے گا کہ وہ آئرہ سے محبت کرتا ہے، وہ خاور کے لیے مسائل بھی کھڑے کر سکتا ہے۔ وہ آخرکار فیصلہ کرتا ہے خاور کے ہاتھوں میں ہوگا، اس کے ساتھ آئرہ کا رشتہ بھی ایک نئے انجام کی طرف بڑھے گا۔ یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو کچھ بھی خاور یہاں پر مسئلے مسائل کر رہا تھا، لڑکیوں کے ساتھ پارٹیز کرنا، رات گے تک وہ باہر رہنا، یہ سب کچھ اب کامیار کا دوست جو اشتیاق ہوتا ہے وہ بھی سب کچھ نوٹ کرتا ہے اور بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اچھا انسان نہیں اور نہ ہی اس کی صحبت اچھی ہے۔ اب اس بات کا تو اندازہ بالکل بھی نہیں تھا خاور کو کہ اشتیاق کتنا زیادہ کلوز ہے اس شخص کے اور وہ اسے سب کچھ بتا دیتا ہے، لیکن یہاں پر اب وہ بہت زیادہ پریشان بھی ہے اور کہتے ہیں کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور کیا چل رہا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ یہاں پر اب وہ ہر بات پوچھنے کی اشتیاق کوشش کرتا ہے اور اسے آہستہ آہستہ جاننے کی بھی کوشش کرتا ہے کہ آخر یہ انسان کیسا ہے اور اس کے دل و دماغ میں کیا چلتا ہے۔ یہاں پر یہ سب کچھ جان لینے کے بعد اسے حیرت بھی ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ یار تمہارے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ وہ انسان کس ٹائپ کا ہے اب مجھے یہ بات بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہو چکی ہے۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ دیکھو
तुम्हें अब बहुत सोच समझ कर चलना होगा। तुम नहीं जानते हो, मैंने आज उसे जाना है कि वो एक ऐसा इंसान है जो अपने अलावा किसी और को सोचता ही नहीं है, और वो आयरा के साथ शादी सिर्फ और सिर्फ खुदगर्जी और लालच की वजह से कर रहा है। मेरे अंकल, मैं जानता हूँ कि किस तरह के थे और इनके हालात भी कुछ खास अच्छे नहीं। मैंने बहुत बातों से ये बात रियलाइज़ की है। ये बात सुनकर कहता है कि शायद तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और मुझे भी अब कुछ ऐसा ही सोचना होगा और कुछ ऐसा करना होगा कि खुद ब खुद ये लोग रिश्ते से इनकार करके चले जाए। तू है नाज़रीन, आने वाली स्टोरी में आयरा उलझन और परेशानी महसूस करने लगी है। खबर कुछ समझने को तैयार नहीं। जब आयरा दोबारा अपनी वालदा से बात करती है, वो समझाते हुए कहती है कि बेटा, खबर अच्छा इंसान है, वेल सेटल्ड है, नहायत शरीफ मुहज़्ज़ब है, मुझे वो बहुत पसंद है। अब देखते हैं तुम्हारे दिल में क्यों उसके लिए जगह नहीं है। ये बात नाकाबिल महम थी। वालिद फिर वही जो अपनी बेटियों की मर्जी का ख्याल रखते हुए, लेकिन ये बेटियों की समझ नहीं आ रही थी। आयरा खबर के नाम पर शादी से इनकार क्यों कर रही है, ये बात आप समझ नहीं आ रही थी इरफान को। आयरा ने तो पहले ही दिन साफ इनकार कर दिया था, मगर अब इसकी माँ ज़बरदस्ती शादी पर मादा करवा रही है। इसी दिन इश्तियाक काम्यार को फ़ोन करके बताता है कि मेरे कज़न ने पहले ही तुमसे कदम उठा लिया, इसने आयरा का रिश्ता मांग लिया, इसका ख़ानदान इस पर गौर कर रहा है। काम्यार ये कहता है, ये कैसे पॉसिबल है, इन्होंने मेरी शादी के बारे में सोचने की भी जहमत नहीं की और एक दिन में फ़ैसला कर लिया। इश्तियाक जवाब देता है, इनके मजाज से साफ लगता है कि वो जल्द हाँ कर देंगे, इसलिए अब तुम खुद फैसला करो तुम्हें क्या करना है। मेरा ख्याल है आयरा भी तुम्हें पसंद करने लगी है, मैंने इस बातों से नोट किया है, और वो तुम जानते हो खबर के रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं, और उसने इनकार भी किया है। इसके बाद काम्यार घर जाकर अपने वालिदैन से कहता है कि तैयारी करे, क्योंकि अब वक्त की बात है, इन्हें बात माननी पड़ेगी। ये सुनकर काम्यार के वालिदैन सख्त नाराज़ होते हैं। यहाँ पर आप उसका बाप सुहेल कहता है कि आखिर तुम समझते क्या हो। इसके वालिद कहते हैं कि क्या तुमने फारिया के घर जाना चाहते हो। काम्यार जवाब देता है, नहीं, आयरा के घर। वालिद इसका काफ़ी सख्त हो जाता है और कहता है कि हम दोबारा इसके घर नहीं जाएंगे जहाँ हमें जलील खोलकर निकाला गया था। हमारी कोई इज्जत है और माशरे में नाम भी। वो लड़की ना पहले तुमसे मोहब्बत करती थी और ना अब करती है। इसने तुम्हें इतना जलील किया कि घर से निकाल दिया और सबके सामने तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। इसलिए बेहतर ये है कि तुम इस ख्यालात से अपने दिल को निकाल दो। लेकिन अब काम्यार ये मुमकिन नहीं हो जा सकता था। काम्यार आयरा के घर पहुंचता है। इरफान साहब गुस्से में पूछते हैं, तुम यहाँ क्यों आए हो। काम्यार इन्हें आईना दिखाते हुए कहता है, जब मैंने सब कुछ कहा था, आपने मुझे जलील किया, गालियाँ दी और निकाल दिया। अब एक और लड़का वही सब कुछ कर रहा है, तो आप अपनी बेटी के लिए कबूल करने के लिए तैयार है, चाहे वो अपने करदार में कितना ही बुरा है। याद रखिए आयरा मेरी है और मैं किसी और को इसकी ज़िंदगी में नहीं आने दूंगा। इरफान साहब गुस्से से कहते हैं, तुम क्या करोगे, गाड़ी जला दोगे, धमकियाँ दोगे, पुलिस से शिकायत करोगे या फिर गोली चलाओगे। आयरा मेरी बेटी है और मैं वही फैसला करूंगा जो इसके लिए बेहतर है, तुम नहीं। अब यहाँ से निकल जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। काम्यार चलाता है। इरफान साहब आयरा से कहते हैं, मैंने फैसला कर लिया है कि तुम सखावत से शादी करोगी। फ़ौरन उनसे बात मंगनी की करके तारीख तय करो, अगले हफ्ते जा रहे हैं, बेहतर है इससे पहले निकाह हो जाए, इस गुंडे से तुम्हारी जान छूट जाए। ऐसा लगता था जैसे इरफान साहब अपनी बेटी की खुशी की कोई मानी नहीं रखते। जो शख्स पहले समझदार और पढ़ा लिखा था, अब काम्यार की जिद में आयरा की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए आमादा था। इसके ख्याल में काम्यार जैसे इंसान को कभी दुरुस्त नहीं किया जा सकता और ना ही वो हो सकता है अपने वालिद से इनकार नहीं कर पाएगी। वो कोशिश करेगी, मगर इरफान साहब कहेंगे कि अगर तुम मेरे लिए वकार की कदर करते हो तो खबर से शादी के लिए मान जाओ। बिलाकर आयरा मान जाएगी। खबर के लिए खुशखबरी होगी, जल्द ही आयरा और खबर की मंगनी तय हो जाती है। मेरा ख्याल है कि मंगनी वाकई हो जाएगी, लेकिन काम्यार इस मंगनी को तोड़ेगा ज़रूर, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेगा कि आयरा किसी और की हो। काम्यार को जैसी आयरा और खबर की मंगनी की खबर मिलेगी, वो उनके घर जाकर मंगनी ख़त्म करने की कोशिश करेगी। आयरा शायद काम्यार को समझाने की कोशिश करे कि वो घर से चला जाए, मगर बात यहाँ ख़त्म नहीं होगी। मुमकिन है आयरा और खबर का निकाह भी तय हो जाए, लेकिन मेरा एहसास है कि जैसे निकाह की बात आएगी तो काम्यार सबके सामने आकर ये ऐलान करेगा वो आयरा से मोहब्बत करता है। वो खबर के लिए मिसाइल भी खड़े कर सकता है। वो आखिरकार फैसला करता है खबर के हाथों में होगा। इसके साथ आयरा का रिश्ता भी एक नए अंजाम की तरफ बढ़ेगा। या फिर यहाँ पर यह भी हो सकता है कि आप जो कुछ भी खबर यहाँ पर मसले मिसाइल कर रहा था, लड़कियों के साथ पार्टीज करना, रात गे तक वो बाहर रहना, ये सब कुछ अब काम्यार का दोस्त जो इश्तियाक होता है वो भी सब कुछ नोट करता है और बताता है और कहता है कि वो अच्छा इंसान नहीं है और ना ही उसकी सोहबत अच्छी है। अब इस बात का तो अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था खबर को कि इश्तियाक कितना ज़्यादा क्लोज है उस शख्स के, और वो उसे सब कुछ बता देता है। लेकिन यहाँ पर अब वो बहुत ज़्यादा परेशान भी है और कहते हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है और क्या चल रहा है, मुझे तो समझ नहीं आती। यहाँ पर अब वो हर बात पूछने की इश्तियाक कोशिश करता है और उससे आहिस्ता आहिस्ता जानने की भी कोशिश करता है कि आखिर ये इंसान कैसा है और इसके दिल और दिमाग में क्या चलता है।
यहाँ पर ये सब कुछ जान लेने के बाद उसे हैरत भी होती है और कहता है कि यार तुम्हारे लिए तो मसला ही नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि वो इंसान किस टाइप का है अब मुझे ये बात बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो चुकी है। ये बात सुनकर कहता है कि देखो तुम्हें अब बहुत सोच समझ कर चलना होगा। तुम नहीं जानते हो, मैंने आज उसे जाना है कि वो एक ऐसा इंसान है जो अपने अलावा किसी और को सोचता ही नहीं है, और वो आयरा के साथ शादी सिर्फ और सिर्फ खुद गर्जी और लालच की वजह से कर रहा है। मेरे अंकल मैं जानता हूँ कि किस तरह के थे और इनके हालात भी कुछ खास अच्छे नहीं। मैंने बहुत बातों से ये बात रियलाइज़ की है। ये बात सुनकर कहता है कि शायद तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो और मुझे भी अब कुछ ऐसा ही सोचना होगा और कुछ ऐसा करना होगा कि खुद ब खुद ये लोग रिश्ते से इनकार करके चले जाए। तू है नाज़रीन, आने वाली स्टोरी में आयरा उलझन और परेशानी महसूस करने लगी है। खबर कुछ समझने को तैयार नहीं। जब आयरा दोबारा अपनी वालदा से बात करती है, वो समझाते हुए कहती है कि बेटा खबर अच्छा इंसान है, वेल सेटल्ड है, नहायत शरीफ मुहज़्ज़ब है, मुझे वो बहुत पसंद है। अब देखते हैं तुम्हारे दिल में क्यों उसके लिए जगह नहीं है। ये बात नाकाबिल महम थी। वालिद फिर वही जो अपनी बेटियों की मर्जी का ख्याल रखते हुए, लेकिन ये बेटियों की समझ नहीं आ रही थी आयरा खबर के नाम पर शादी से इनकार क्यों कर रही है। ये बात आप समझ नहीं आ रही थी इरफान को। आयरा ने तो पहले ही दिन साफ इनकार कर दिया था, मगर अब इसकी माँ ज़बरदस्ती शादी पर मादा करवा रही है। इसी दिन इश्तियाक काम्यार को फ़ोन करके बताता है कि मेरे कज़न ने पहले ही तुमसे कदम उठा लिया, इसने आयरा का रिश्ता मांग लिया, इसका ख़ानदान इस पर गौर कर रहा है। काम्यार ये कहता है ये कैसे पॉसिबल है, इन्होंने मेरी शादी के बारे में सोचने की भी जहमत नहीं की और एक दिन में फ़ैसला कर लिया। इश्तियाक जवाब देता है इनके मजाज से साफ लगता है कि वो जल्द हाँ कर देंगे, इसलिए अब तुम खुद फैसला करो तुम्हें क्या करना है। मेरा ख्याल है आयरा भी तुम्हें पसंद करने लगी है, मैंने इस बातों से नोट किया है, और वो तुम जानते हो खबर के रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं और उसने इनकार भी किया है। इसके बाद काम्यार घर जाकर अपने वालिदैन से कहता है कि तैयारी करे क्योंकि अब वक्त की बात है, इन्हें बात माननी पड़ेगी। ये सुनकर काम्यार के वालिदैन सख्त नाराज़ होते हैं। यहाँ पर आप उसका बाप सुहेल कहता है कि आखिर तुम समझते क्या हो। इसके वालिद कहते हैं कि क्या तुमने फारिया के घर जाना चाहते हो। काम्यार जवाब देता है नहीं, आयरा के घर। वालिद इसका काफ़ी सख्त हो जाता है और कहता है कि हम दोबारा इसके घर नहीं जाएंगे जहाँ हमें जलील खोलकर निकाला गया था, हमारी कोई इज्जत है और माशरे में नाम भी। वो लड़की ना पहले तुमसे मोहब्बत करती थी और ना अब करती है, इसने तुम्हें इतना जलील किया कि घर से निकाल दिया और सबके सामने तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मार दिया, इसलिए बेहतर ये है कि तुम इस ख्यालात से अपने दिल को निकाल दो। लेकिन अब काम्यार ये मुमकिन नहीं हो जा सकता था। काम्यार आयरा के घर पहुंचता है। इरफान साहब गुस्से में पूछते हैं तुम यहाँ क्यों आए हो। काम्यार इन्हें आईना दिखाते हुए कहता है जब मैंने सब कुछ कहा था, आपने मुझे जलील किया, गालियाँ दी और निकाल दिया। अब एक और लड़का वही सब कुछ कर रहा है तो आप अपनी बेटी के लिए कबूल करने के लिए तैयार है, चाहे वो अपने करदार में कितना ही बुरा है। याद रखिए आयरा मेरी है और मैं किसी और को इसकी ज़िंदगी में नहीं आने दूंगा। इरफान साहब गुस्से से कहते हैं तुम क्या करोगे, गाड़ी जला दोगे, धमकियाँ दोगे, पुलिस से शिकायत करोगे या फिर गोली चलाओगे। आयरा मेरी बेटी है और मैं वही फैसला करूंगा जो इसके लिए बेहतर है, तुम नहीं। अब यहाँ से निकल जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। काम्यार चलाता है। इरफान साहब आयरा से कहते हैं मैंने फैसला कर लिया है कि तुम सखावत से शादी करोगी। फ़ौरन उनसे बात मंगनी की करके तारीख तय करो, अगले हफ्ते जा रहे हैं, बेहतर है इससे पहले निकाह हो जाए, इस गुंडे से तुम्हारी जान छूट जाए। ऐसा लगता था जैसे इरफान साहब अपनी बेटी की खुशी की कोई मानी नहीं रखते। जो शख्स पहले समझदार और पढ़ा लिखा था अब काम्यार की जिद में आयरा की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए आमादा था। इसके ख्याल में काम्यार जैसे इंसान को कभी दुरुस्त नहीं किया जा सकता और ना ही वो हो सकता है अपने वालिद से इनकार नहीं कर पाएगी। वो कोशिश करेगी मगर इरफान साहब कहेंगे कि अगर तुम मेरे लिए वकार की कदर करते हो तो खबर से शादी के लिए मान जाओ। बिलाकर आयरा मान जाएगी। खबर के लिए खुशखबरी होगी, जल्द ही आयरा और खबर की मंगनी तय हो जाती है। मेरा ख्याल है कि मंगनी वाकई हो जाएगी, लेकिन काम्यार इस मंगनी को तोड़ेगा ज़रूर क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेगा कि आयरा किसी और की हो। काम्यार को जैसी आयरा और खबर की मंगनी की खबर मिलेगी वो उनके घर जाकर मंगनी ख़त्म करने की कोशिश करेगी। आयरा शायद काम्यार को समझाने की कोशिश करे कि वो घर से चला जाए, मगर बात यहाँ ख़त्म नहीं होगी। मुमकिन है आयरा और खबर का निकाह भी तय हो जाए, लेकिन मेरा एहसास है कि जैसे निकाह की बात आएगी तो काम्यार सबके सामने आकर ये ऐलान करेगा वो आयरा से मोहब्बत करता है।